Ladies and gentlemen, please welcome one of the world's most charismatic leaders, also known as a people's leader, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. I extend a warm welcome to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar Rao, the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley, and the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. On this momentous occasion of celebrating 60 years of ICICI Group, it is a great privilege to welcome a galaxy of leaders. To commemorate today's occasion, I invite Mrs. Chanda Kochhar, Managing Director and CEO, ICICI Bank, for the opening address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Maharashtra Shri Vidyasagar Rao, Honorable Union Minister of Finance, Corporate Affairs, Information and Broadcasting Shri Arun Jaitley ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis, distinguished guests, my colleagues from the ICICI Group, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. It is indeed a matter of pride for us at ICICI that the Honorable Prime Minister is gracing this occasion. माननीय प्रधानमंत्री जी, आईसीआईसीआई का जन्म भी आप ही की तरह स्वतंत्र भारत में हुआ था। जब से हमारे देश ने अपने इंडस्ट्रियल बेस का विकास आरंभ किया, तभी से आईसीआईसीआई भी देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। On 5th of January, the ICICI Group completes 60 years since it was established in 1955 as the Industrial Credit and Investment Corporation of India. Over these years, we have not only partnered the nation's progress, but we have sought to catalyze growth by bringing about positive change in the country. We have financed projects in core industrial sectors like steel, cement, aluminium, petrochemicals, textiles, automobiles. We have played a key role in financing infrastructure. We have financed thousands of megawatts of power capacity, including India's largest hydro power project in the private sector, millions of tons of steel capacity, India's largest expressway, India's first greenfield private sector airport, largest airport modernization project, and so on. We have also played a role in several policy development committees, such as the National Telecom Policy as early as in 1999. As India changed and the needs of Indian people evolved, ICICI stepped in to meet the aspirations of our demography. We rapidly expanded, or rather I should say, we actually created the retail loan market in the country. Over the last 15 years, we have disbursed an aggregate of 2,75,000 crores of home loans and 1,15,000 crores of automobile loans. Through our global presence, we are facilitating trade and investment flows to and from India and serving the vast non-resident Indian community. We have gone beyond banking to become a leader in the whole range of financial services, including insurance and mutual funds. But even as we continue to diversify and expand, we have never forgotten that this institution was established to accelerate development of this country. The ICICI Group has a long history of contributing to inclusive growth. We have been focusing specifically on 4 areas: education, healthcare, skill development, and financial inclusion. And in the recent years, we have substantially scaled up our activities in skill development and financial inclusion.
Through the ICICI Academy for Skills, we are providing vocational training free of cost to underprivileged youth at 9 centers across the country. सर, इस इनिशिएटिव के द्वारा हम यूथ को वो स्किल्स देना चाहते हैं जिससे वो देश के आर्थिक विकास का हिस्सा बन सकें और जिससे देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिल सके। हमने एक साल में 6,500 से ज्यादा यूथ को ट्रेनिंग दी है। ये यूथ 350 गांवों से आए हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इसमें से 28% लड़कियां हैं। We also believe that access to banking is critical for inclusive growth. सर, हमने 2010 में अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान बनाया था और इन 4 वर्षों में हमने लगभग 2 करोड़ फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट्स खोले हैं। हमने 15,000 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है और इनमें से कई गांव ऐसे हैं जहां इससे पहले कोई भी बैंकिंग सुविधा नहीं थी। हमारी माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव से लगभग 12 लाख महिलाओं को लाभ हुआ है। We are also making a contribution to the Swachh Bharat Abhiyan through a full 1-year program where every single day the team of one of our branches cleans their surrounding areas. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे देश को एक नया नेतृत्व दिया है, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग दी है जिससे हमारा देश विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा। Sir, I'm reminded of what Swami Vivekananda had said. He said, "We reap what we sow. We are the makers of our own fate. The wind always continues to blow. Those vessels whose sails are unfurled catch the wind and go forward on their way. But those whose sails are furled do not catch the wind. It is not the fault of the wind. It is we who make our destiny." Respected Prime Minister, you have unfurled India's sails and we are now on our way to a great future under your leadership. माननीय प्रधानमंत्री जी, आईसीआईसीआई की 60वीं वर्षगांठ पर हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई ग्रुप देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। मेक इन इंडिया, हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, इन सभी लक्ष्यों तक पहुंचने में हम अपना योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। On this 60th anniversary, I also have a message for our clients who are present with us here today. I would like to say that we are proud to have been part of your journey and to have shared our own journey with you. We look forward to continuing to work with you to help realize your ambitions and the potential of our country. And to those millions of smaller customers who are not present with us here today, but who reside in the cities, towns and villages of India, I would like to say that we at the ICICI Group will continue to strive to bring new products, new services and greater ease and convenience to you. To say that it is indeed a privilege to be a part of this institution, an institution with a rich legacy combined with a forward-looking perspective. Let us all resolve today that we will continue to work together to honor this legacy and contribute to nation building. And finally, for our country, I will end with a small prayer. Kale varshatu parjanyah, prithvi shasya shalini, deshoyam chobha rahito, manavaha nirbhayah. Let the rains shower in time. Let the earth be fertile. Let this country be full of auspiciousness and free from affliction. Let the people be free from fear. Friends, let us hope that this dream for our country comes true. Respected Prime Minister,
I'm sure under your leadership, we as a nation will achieve our hopes, aspirations, and potential. And the ICICI Group will continue to be a partner in this country's progress. Thank you and Jai Hind. Thank you, ma'am, for the opening address. I request Mrs. Chanda Kochhar to welcome all the guests on stage by presenting them with a bouquet. Thank you, Mr. Kamath. Today will be the moment in history when ICICI Group, in line with 60 years of being in service to the nation, unveils the ICICI Digital Village, which we believe is a giant leap in the direction of fulfilling the national agenda of inclusive growth. I now invite the leader who not only conceived this initiative, but was also the motive force for its implementation, Mrs. Chanda Kochhar, Managing Director and CEO, ICICI Bank, to introduce the ICICI Digital Village. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सपना है कि भारत डिजिटल इंडिया बने। जब हम डिजिटल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की तस्वीरें आती हैं, कुछ बड़े-बड़े शहरों की, बड़े-बड़े देशों की तस्वीरें आती हैं। परंतु भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए आपके डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरणा लेकर हमने भारत के एक गांव को पूरी तरह से डिजिटल विलेज बना दिया है। ये गांव है अकोदरा, जो गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। अकोदरा के कुछ निवासी यहां हमारे साथ हैं और इससे भी कई अधिक निवासी वीडियो द्वारा हमारा समारोह देख रहे हैं। अकोदरा वासियों, केम छो? તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે તમારું ગામ ડિજિટલ વિલેજ બનશે। Respected Prime Minister, you have articulated India's key strengths as 3 Ds: demand, democracy, and demographic dividend. Our concept of digital village revolves around 3 Cs: cashless, connected, and comprehensive. Cashless, because we have created a fully cashless digital payment ecosystem across various points in the village, such as village shops, the mandi for sale of agri-produce, the cooperative society for sale of milk. Next, connected. There is a high-speed broadband connectivity throughout the village through a Wi-Fi tower. We have put in place a terminal for display of prices of agri-commodities. We have also created a website and Facebook page for the village. And finally, this initiative is comprehensive, because it covers many areas of daily life: digitization of school records, implementation of a school management software, smart devices and boards in the classrooms, audio-visual curriculum of the Gujarat board in Gujarati language, video-based educational content and Anganwadis, telemedicine and skill development. Sir, इस इनिशिएटिव का प्रभाव ये है कि आज इस गांव में हर एडल्ट, और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि न सिर्फ हर परिवार, बट हर एडल्ट, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पास एक बैंक अकाउंट है। जो लोग कोऑपरेटिव में दूध बेचने जाते हैं, उन्हें कोई पर्ची नहीं लेनी पड़ती, कैश का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि दूध के फैट कंटेंट
और वेट की मेजरमेंट के हिसाब से उनका पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। स्कूल के बच्चों को टेक्नोलॉजी द्वारा अच्छी शिक्षा मिल रही है। अकोदरा की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। I would like to thank the government of Gujarat and the local officials for their support in this project. I would also like to thank the people of Akodra. Our aim through this initiative has been to show that technology can be used to eliminate barriers that separate rural and urban India. To realize the vision of a rural India that is not rural but urban. Villages where residents can access modern facilities and services like their urban counterparts. This is, of course, one attempt by one organization in one village. But I sincerely hope that this one initiative will catalyze many such initiatives across the country, and together we will work towards making the dream of Digital India a reality. Ladies and gentlemen, we will now have an audio-visual depicting the creation of ICICI Digital Village, Akodra. सपना देख रहे थे क्या? हाँ भाई। किसका सपना? अपने गांव का। कौन सा गांव? अकोदरा। बहुत अजीब सपना था। अजीब क्यों? मैंने सपने में देखा कि मेरे गांव में किसी की जेब में पैसा नहीं है, सब लोग अपनी जेब में कार्ड लेके चल रहे हैं। बहुत अनोखा सपना था आपका। ये सपना नहीं, हकीकत। आप किससे बात कर रहे हैं भाई साहब? आप ही। अच्छा, और कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि इन्होंने जो सपना देखा है वो अब सपना नहीं रहा, हकीकत बन चुका। वो कैसे? क्योंकि अब अकोदरा डिजिटल विलेज बन गया है। डिजिटल विलेज, इसका क्या मतलब? डिजिटल विलेज का मतलब तो सुनो। नई सोच और नई है शान। हाँ, गांव में अपने बैंक है, अकाउंट खोलना अब है आसान। तुरंत करो ये पहला काम, तुरंत करो ये पहला काम। भाई लेकिन बैंक अकाउंट से क्या होगा? डिजिटल विलेज में जो भी कमाई होती है वो सीधा बैंक अकाउंट में जाती है, और जो भी खर्चा होता है वो सीधा बैंक अकाउंट से कटता है। तो नकद की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कैसे? अरे झटपट 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 झटाक झटपट झटपट झट। अरे चो भाई धपाक से पैसा अकाउंट में फटाक से, चाहे दूध चाहे अन्न या जो भी चाहे मन, और जोड़ो जोड़ो धन, मन धड़क पटाक सटाक तड़ाक धनक धनक धन धन। भाई लेकिन खरीदने के लिए तो नोट चाहिए ना? ओ बेचो खरीदो जी और सब जो पूछो जी। ना नकद रोकड़ा देवू ना कोई झंझट ले वो जी। अरे राशन ले वो जी या पानी ले वो जी। लो कोई खाद या कोई बीज बस शिक्षित कर लो जी, या टिक टिक कर लो जी। भाई गांव तो बिल्कुल कैशलेस हो गया, बिल्कुल मेरे सपने के जैसे। हाँ, लेकिन इसका क्या फायदा? फायदा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज से? कैश को ले जाना कैसे, ओ अरे कैश को संभालना कैसे, कैश के झंझट से स्वतंत्र, तो कैशलेस हो बन स्वतंत्र, कैशलेस हो बन स्वतंत्र। लेकिन अगर इमरजेंसी में कैश की जरूरत पड़े तो? ना रिश्तेदारी ना दुनियादारी, ना दोस्त यारी ना कोई उधारी, किसी भी दिन और किसी भी बारी, हवाई हवाई मेरे गाँव खराब एटीएम मैं बारी जाऊं जी, ऐसे सुंदर माया में मैं बारी जाऊं जी। भाई ये तो कमाल हो गया। असली कमाल तो ये है कि अब बैंक अकाउंट से कमाई और खर्चे का पूरा पूरा हिसाब मिलता है, और इसीलिए सही तरह से बचत कर सकते। अच्छा अच्छा, तो बैंक अकाउंट खुलने से गांव डिजिटल हो जाएंगे? बैंक अकाउंट तो एक शुरुआत है। डिजिटल होने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, और वो भी वाईफाई। वाईफाई? इस गाँव का नया पावर है ये वाईफाई का टावर, घर बैठे बैठे ही मुझको दुनिया का हर कोना घुमा। इस चीज का कितना किराया
मुझको किस विभाग ने दी है कितनी ग्रांट, तेरे भाई दी है कितनी ग्रांट। ये गांव है, ये शहर क्यों? भारत का हर गांव भारत के हर शहर जैसा क्यों नहीं हो सकता? यही तो फर्क मिटाना है। पर कैसे होगा? एटीएम और वाईफाई तो अच्छी बात है, पर पढ़ाई का क्या करोगे? स्कूल तो अभी भी शहर में ही अच्छे हैं, लेकिन अकोदरा से अच्छे नहीं। क्या कह रहे हो भैया? अकोदरा स्मार्ट देश की नींव स्मार्ट स्कूल्स और स्मार्ट बच्चों में ही होती है, और अकोदरा में ये नींव रखी जा चुकी है। अच्छा जी। स्मार्ट देश के स्मार्ट है बच्चे, क्लास भी इनकी स्मार्ट। स्मार्ट है साधन, स्मार्ट है शिक्षण, भविष्य भी है स्मार्ट। अब तुम्हारे स्कूल सब स्मार्ट 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 हो जी रे। अब तुम्हारे स्कूल सब स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। खुद करो और समझो, बूझो, टच करो और जादू देखो। चॉक इन टॉक अब हुआ पुराना, करके सीखो का जमाना। हमारे स्कूल सब स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। और सबसे स्मार्ट बात तो ये है कि अब लड़कियों के लिए एक स्किल सेंटर जहां उन्हें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि पढ़ लिख कर वो अपना करियर बना सके। काफी स्किल है, स्मार्ट स्किल्स है, यहाँ सिखाते स्मार्ट भविष्य यहाँ बनाते। बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हमारा स्कूल बन गया स्मार्ट जी, मैं बारी जाऊं रे। ये तो कमाल हो गया, पर ये सब सच हुआ कैसे? अरे कैसी सुंदर माया, मैं वारी जाऊं रे। I now request the Honorable Prime Minister to dedicate this ICICI Digital Village to the nation. I thank the Honorable Prime Minister for dedicating Akodra, the ICICI Digital Village, to the nation. Ladies and gentlemen, we would now like to recognize the outstanding effort by Team Akodra. This team worked seamlessly and tirelessly to execute all the initiatives which you saw in the audiovisual. The ICICI Digital Village would not have been possible without them. Please welcome on stage Sri Nagarajan M., Officer of the Indian Administrative Services and District Development Officer, Himmatnagar Sabarkantha District, Srimati Taraben Rameshbhai Patel, Sarpanch, Akodra Gram Panchayat, and Srimati Jyotsnaben Patel, Acharya, Sri Akodra Prathmik Shala. Ladies and gentlemen, I request a big round of applause for the team Akodra. Thank you, team Akodra, and congratulations once again for an outstanding work. I now request the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, to please address the gathering. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेटली जी, आदरणीय राज्यपाल जी, श्रीमती चंदा कोचर जी, यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं आईसीआईसीआई को बहुत बधाई देना चाहता हूं
पिछले 60 वर्षों में इस देश के निर्माण में आईसीआईसीआई ने बहुत बड़ी सहभागिता दी है और आज देश में एक बड़ी ही प्राइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में, बैंक के रूप में और फाइनेंस के सभी क्षेत्रों में आईसीआईसीआई ने बहुत उल्लेखनीय इस प्रकार का कार्य किया है और इसलिए निश्चित रूप से ये जो 60 साल का सफर आईसीआईसीआई ने पूरा किया है, ये हम सभी के लिए बहुत काबिल तारीफ है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस 60 साल के सफर को तय करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अकोदरा को बदला है, जिस प्रकार से एक डिजिटल विलेज अकोदरा के रूप में उन्होंने तैयार किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये अपने आप में कोई भी इंस्टीट्यूशन इससे अच्छा तोहफा अपने देश को नहीं दे सकती। और इसलिए आईसीआईसीआई का, अकोदरा के निवासियों का और अभी अभी जो टीम अकोदरा यहां पर आकर गई, उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जन धन योजना की शुरुआत की और इस बात के महत्व को आपने समझा कि जब तक हम वित्तीय अधिकारिता नहीं देंगे तब तक देश आगे नहीं जा सकता। और इसलिए हर व्यक्ति को इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत आपने लाने की कोशिश की और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस कार्य को महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया और हम लोगों ने महाराष्ट्र में अभी इसका सैचुरेशन लेवल अटेन कर लिया है और उसका रिपोर्ट भी हम लोग केंद्र सरकार को देंगे। लेकिन केवल सैचुरेशन लेवल अटेन करके हम लोग नहीं रुकने वाले। सैचुरेशन लेवल के बावजूद भी कुछ लोग इस नेट से बाहर हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर घुमंतु लोग भी आज हमारे देश में रहते हैं और जो लगातार घूमते, एक जगह नहीं रुकते, ऐसे भी लोगों को महाराष्ट्र में इस नेट में हम लाने की कोशिश करेंगे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिस प्रकार से आपने शुरू किया है, महाराष्ट्र उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। मैं साथ ही में ये जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अकोदरा के रूप में, मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के गांव तैयार हो, इस दृष्टि से हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और आज मेरे सामने महाराष्ट्र की सारी कॉरपोरेट कम्युनिटी बैठी है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि हम लोग इस प्रकार के गांव हमारे यहां पर भी शुरू करने की कोशिश करें और महाराष्ट्र सरकार उसमें पूरे तरीके से सहभागी होगी और निश्चित रूप से आपकी मदद से ऐसे गांवों को हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आज डिजिटल इंडिया का एक सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है और महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी उसमें पहल ली है और जल्दी ही हम लोग मार्च तक नई डिजिटल पॉलिसी महाराष्ट्र में ला रहे हैं। आज जिस समय एक विलेज को डिजिटल करना है, उस समय उसमें जो कठिनाइयां हैं, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे ध्यान में आई है, वो आज ओएफसी का जो जाल हमको तैयार करना है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई राइट ऑफ वे की आती है। और इसलिए हमने यह तय किया है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन राइट ऑफ वे ये हम लोग महाराष्ट्र में तैयार कर रहे हैं कि जिसके चलते आज ये जो डिजिटल इंडिया को या डिजिटल महाराष्ट्र करने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है, जिसमें समय जाता है, वो समय नहीं लगेगा और हम लोग निश्चित रूप से एक प्रकार से ये जो डिजिटल क्रांति है ये लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे आज अकोदरा हुआ है, एक प्रकार से समता लाने के लिए
ये जो तकनीक है, ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जो है, ये सबसे बड़ा उपकरण है कि जिसके भरोसे हम लोग समता ला सकते हैं, जिसके भरोसे हम वित्तीय अधिकारिता दे सकते हैं। और इसलिए एक बहुत अच्छा मॉडल ये आईसीआईसीआई ने तैयार किया। मैं श्रीमती चंदा कोचर जी का और आईसीआईसीआई के सभी टीम लीडर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आपका काम आगे भी चलता रहेगा और देश के इस विकास में जिस प्रकार से 60 सालों में आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, इससे भी बड़ा योगदान अब आपसे अपेक्षित है, क्योंकि देश एक उड़ान भर रहा है, देश आगे जा रहा है, देश बहुत आगे जाना चाहता है। मेक इन इंडिया जैसे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उसमें निश्चित रूप से आईसीआईसीआई आगे रहेगा, यही विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। फिर एक बार इस 60 साल के सफर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Shri Fadnavis. I now invite the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley, to share his message with us. The Honorable Prime Minister, the Honorable Governor of Maharashtra, the Chief Minister, Mrs. Chanda Kochar, ladies and gentlemen. Let me at the very outset compliment and congratulate the ICICI Group on 60 years of its glorious existence. Your achievements, which were just presented in Mrs. Kochar's address to this august gathering, are already well known. On your 60th birthday, instead of accepting gifts, you've gifted this country with a role model village. Something which is a trendsetter, and I'm sure as a part of this new campaign which has been launched, where each one of the elected representatives in India has now to adopt a village and make it an ideal village, there will be many lessons to be learned from what you've done. 60 is normally a very troublesome year. People in government retire at 60. The reference to 60 in many parts of India is not very complimentary. In this part of the country, they consider it an age of great maturity. In UP, they use the word Satya, which derives its origin from 60. But for an institution like yours, 60 is a very young age, particularly because institutions of this kind have no end age. They have to go on and contribute to the development of this country. In your last 60 years, you've seen great achievements that this country has received. You've also been a witness to the great opportunities that we've missed. And these opportunities do not come again and again to any country. We had reached a situation which didn't exactly excite any one of us. And I think these challenging and troubled times that we are passing through are capable of becoming an important turning point in history. The last 7 months have seen many an action. You mentioned your financial inclusion program, which you started in 2010.
the Prime Minister had launched a financial inclusion program for the entire banking industry. Out of the approximate 24 crore families in India, only 58% had access to banking. And that's when we took up the challenge that between 14th August last year and the 26th of January this month, let's approach at least 7.5 crore more families and move closer to this target of financial inclusion. In the month of December itself, we exceeded the target. And these are amongst the weakest sections of India who we were targeting. And since yesterday, when we've actually put into practice the cash transfer scheme for those who are entitled to the subsidies, each one of these accounts is going to be of great avail to the people. I always wonder, at times hallucinate, that even these sections have a rupee card, and a lot of Indian spending, most of it goes into the banking sector. Probably, days would not be very far off when we could proudly match the Chinese growth rates. Because a very large part of our economy, on being out of the banking sector itself, is really not reflected in the real strength of Indian economy. All I wish to say is, the days ahead are going to be extremely exciting. The government under the Prime Minister's leadership has clearly, unambiguously decided on the roadmap that it wants to pursue. We will pursue this roadmap consistently and doggedly. We will endeavor that none of the steps we take ever give a contrarian indication. But to achieve that, we need the lifeline for Indian industry. Today, our challenging moments are really to bring a spurt in investment, concentrate on infrastructure, improve Indian manufacturing in a big way. Is both domestic and international investment. By the confidence that we've built up in the initial stages in the Indian economy, which was falling off the global radar, now I think the time has come to enter into the next phase where we give a spurt to these goals which are essential for reviving the Indian economy. And I'm sure the banks in India, both in the public sector and the private sector, will be the catalyst. And therefore, whereas your 60 years have seen, as I said, many triumphs, many missed opportunities, this one is an opportunity we cannot afford to miss. And this one is an opportunity which will make India take a historic turn. And I'm sure with the institutional capacity of 60 years, the ICICI Bank will be in the forefront of this change, and others will certainly emulate what you do. I wish you a very strong history for the bank in the years to come. I do not know what the ultimate life of this bank would be, because institutions like this really are created forever. And I'm sure in the service of this country, you shall continue to perform the great role which you have done. My best wishes to you and all the staff members of the ICICI Group. Thank you. Thank you, Sri Jaitley, for your message. Ladies and gentlemen, now is the moment that we all have been eagerly waiting for. It is a great privilege to welcome one of the most dynamic
and determined leaders that our country has ever produced. A leader who's a youth icon. A leader with a Midas touch entrusted with the responsibility of building a modern India. A leader regarded as India's pride, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. I request the Prime Minister to share his thoughts with us. महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी और आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु चंदा जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी संस्था के जीवन में 60 साल की यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती है। 60 साल का कार्यकाल भारत जैसे विशाल देश में किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में ये समय बहुत कम पड़ता है। व्यक्ति के एक जीवन में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संस्था के जीवन में एक प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। और मैं मानता हूं कि अब आईसीआईसीआई ग्रुप उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसके बदौलत जिन आशा और आकांक्षाओं को लेकर के उसका जन्म हुआ, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, उसको अचीव करने का अब उसके सामने समय आया है। और तब उसको 60 साल की जो गति है वो काम नहीं आती है। 60 साल का जो कैनवास है वो भी छोटा पड़ता है। उसे बड़े कैनवास पर लंबी दौड़ के साथ अपनी योजनाएं करनी होती हैं। लेकिन 60 साल का ये अनुभव भारत की विकास यात्रा में बैंकिंग सेक्टर के योगदान में एक बहुमूल्य भूमिका निभाने का, उसकी सफलता का आंक आने वाले दिनों में देश की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक ताकतवर बनाने में बहुत बहुत उपयोगी होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इस ग्रुप के नाम पर आईसीआई, मैं समझता हूं 60 साल हो गए, आई को बहुत देखा, अब आईसीयू होना चाहिए। मैं आपको देख रहा हूं, हिंदुस्तान को देख रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूं, और उस रूप में मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई लीड कर सकता है क्या, कि फॉर 15 इयर्स, नेक्स्ट 15 इयर्स 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर के आ रहे हैं। 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन चीजों को हम देश में ला करके रहेंगे। कभी कभार एक आध इंस्टीट्यूशन लीड करती है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं।
और अपने आप में एक मोमेंटम बन जाता है और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 25 में थर्टी में आपके 75 साल होंगे। उस अर्थ में बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि भारत के 75 साल के समय का क्या गोल हो और नेक्स्ट 75 जब आपके हो तब क्या हो। एक सोशल चार्टर के साथ देश के सामने फाइनेंशियल सेक्टर किस प्रकार से नई दिशा दे सकता है, इसके सपनों को लेकर के आप आएंगे। मैं समझता हूं देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, देश को एक नई दिशा मिलेगी। मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि जिस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूं, स्वच्छ भारत, उन्होंने उस बीड़े को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने सभी ब्रांचेस को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। उनके इस प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं और पूरे ग्रुप को, सभी ब्रांचेस को, उस ब्रांचेस में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है। क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन हम हमारे फाइनेंस के जो एरियाज है उसमें एक नए क्षेत्र का इजाफा कर सकते हैं क्या, और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या? क्या हमारा ग्रुप एक साल के भीतर भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1 लाख स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं? वेस्ट में से वेल्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौजवान आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। हमारी यंग जनरेशन को उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मॉडल देना और फाइनेंशियल व्यवस्था देना। मैं समझता हूं कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है, लेकिन वो स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, तो शायद एक सस्टेन व्यवस्था, लंबे समय तक काम आने वाली एक अच्छी व्यवस्था को हम उभार सकते हैं और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट के देते होंगे, बहुत बड़े बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। यहां जिस प्रकार का ऑडियंस है उसको लगता है कि बहुत बड़े काम आपके चलते होंगे। इस ऑडियंस को देख करके भी मैं तय कर सकता हूं। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूं, छोटे छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए, उनको प्रेरित करें, एक बहुत बड़ा काम होगा। उसी प्रकार से यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजामा बैला बदा। इस गांव की एक और भी विशेषता है। देश का एक पहला गांव ऐसा है जहां पर कैटल हॉस्टल है। हमारे यहां गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध करके रखते हैं और सारी गंदगी वहीं होती है और बीमारी की जड़ भी वही होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में इतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमने एक नई समाज रचना करनी पड़ेगी
और उसी विचार में से एक प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रहते हैं और मालिक दिन में 2-4 घंटे हॉस्टल में जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं, दूध लेने के समय दूध के समय पहुंच जाते हैं, पूरा गांव साफ सुथरा रहता है। और एक हॉस्टल का प्रयोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को हॉस्टल में रख सकते हैं तो हमारे कैटल के लिए हॉस्टल क्यों नहीं बना सकते? और उसके कारण उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। जब मैं वहां था तब तो मुझे मालूम है इनकी इनकम में 20% बढ़ोतरी हुई थी कैटल हॉस्टल के कारण, क्योंकि वो उसमें से फर्टिलाइजर बनाने लगे, गैस निकालने लगे, बिजली पैदा करने लगे, कई चीजें उनकी हुई, दूध में भी बढ़ोतरी हुई। और उसी गांव को बैंक ने डिजिटल विलेज बनाने के लिए और उसको बहुत सारा काम पूरा कर दिया है। अब गांव भी बहुत इंतजार करने वाला नहीं है। उसके एस्पिरेशंस भी वही है जो शहर में बैठे हुए समृद्ध वर्ग के हैं। और ये समय की मांग है कि हम उस पर फोकस करें। रूरल डेवलपमेंट भी भारत की जीडीपी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। नए तरीके से उसकी संभावनाएं पड़ी है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाए, एग्रीटेक में बल दिया जाए, एग्री सेक्टर में वैल्यूएशन में बल दिया जाए। बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे रूरल लाइफ में आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन नया हम खड़ा कर सकते हैं। ये संभावनाएं पड़ी है। ये डिजिटल विलेज की कल्पना आने वाले दिनों में, जो डिजिटल इंडिया का सपना हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें ये भी चीजें एक मॉडल के रूप में हमारे सामने आएगी और काम आएगी। मैं इस इनिशिएटिव के लिए भी आपको बधाई देता हूं। अकोदरा गांव के लोग तो अब कैशलेस उनका कारोबार चलेगा, लेकिन हम ये सपना कब पूरा करें कि भारत में भी कैशलेस आर्थिक व्यवस्था विकसित हो। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में इसकी कंपटीशन होनी चाहिए। कौन बैंक है जिसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है और कैशलेस है? काले धन के जो अनेक उपाय हैं उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय ये है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत बड़ा उसके कारण फर्क आ सकता है और हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आदत डालनी चाहिए। और बैंक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं वो ये है, एशिया का ये जो भूभाग है, भारत और उसके अड़ोस पड़ोस के देश इंक्लूडिंग चाइना, विश्व में ये एक ऐसा भूभाग है कि जहां परंपरागत रूप से सेविंग का स्वभाव है। सदियों से परंपरा है। हर पीढ़ी के मां बाप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कुछ बचा के जाना ये सोच रखते हैं। दुनिया के और हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर क्रेडिट कार्ड की दुनिया है, बच्चों के नसीब में क्रेडिट कार्ड आता है और कुछ नहीं आता है। यहां वो सोच नहीं है, यहां पर सेविंग की सोच है। लेकिन कालक्रम स्थिति ये बन गई कि उसका स्वभाव तो रहा है कि भाई बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए गोल्ड की तरफ चला गया। उसको लगता है सोना खरीद के रख लो भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। शायद 100 में से एक इंसान भी नहीं निकलता होगा कि जिसको अचानक सोना बेच करके कहीं जाना पड़ा हो। 100 में से एक भी नहीं निकलता होगा। लेकिन साइकोलॉजी है कि भाई सोना होगा तो आधी रात काम आएगा। बैंकिंग सेक्टर के सामने चैलेंज है। वो क्रेडिबिलिटी हर इंसान के दिमाग में हम पैदा कर सकते हैं कि जिसको कभी उसको इच्छा न हो कि अब सोने खरीदने की जरूरत नहीं, गांव में बैंक की ब्रांच है या एटीएम है, मुझे कभी पैसों के लिए संकट नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, अब मुझे सोना खरीद करके कोने में रखने की जरूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा वर्ग है जो आवश्यकता से अधिक गोल्ड रखता है,
उसका मूल कारण उसके दिमाग में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर होता है। अगर बैंक के द्वारा उसको एश्योरेंस मिलता है, उसको एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई, अब इसके साथ मेरा नाता जुड़ गया, यानी मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी है। मैं समझता हूं ये एक गोल्ड का अल्टरनेट बनने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। क्या हम 75 साल जब मनाए तब इन चीजों को अचीव करने की दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? आप देखिए, एक बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। सिर्फ बैंकिंग सेवाएं नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। हम उस दिशा में नए तरीके से हमारे बैंकिंग सेक्टर को सोचें। मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ देश को दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आज इस अवसर पर इस 60 साल की यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि कोई एक कालखंड में सब होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये परिणाम मिलता है, और इसलिए इस ग्रुप के सभी उन वरिष्ठ जनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for an inspiring and a heartwarming address. We are indebted to you for sparing time to be here today to dedicate the ICICI Digital Village to the nation and for sharing your thoughts with us. As always, your address gave us a vision, a message of hope, and a call to action. Your words will serve as inspiration to all of us to strive harder to realize the vision of a strong and a prosperous India. Once again, thank you very much, sir. We thank the Honorable Governor of Maharashtra, Shri C. Vidyasagar Rao, the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley, and the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, for gracing this occasion with their presence. With this, we conclude today's celebration. Ladies and gentlemen, I request all of you to please remain at your seats till the dignitaries at the stage have left the event area. I request all of you to please remain at your seats. Ladies and gentlemen, kindly remain at your seats.